All right, good morning, students. Today we are starting with Geography Chapter 7. We are on Part 1. All right, our objective for today is students will be able to define nucleated and dispersed settlements and differentiate between them. All right, तो इस चैप्टर में वी आर गोइंग टू बी एक्सप्लोरिंग अ टॉपिक कॉल ह्यूमन सेटलमेंट्स. तो वो क्या होता है आज हम जानेंगे. एंड we're going to learn about two different types of human settlements, nucleated and dispersed. all right, तो आज हम उन दोनों टाइप्स के बारे में क्या करेंगे. आज हम उन दोनों टाइप्स को डिफाइन करेंगे. व्हाट्स द डेफिनेशन और द एक्सप्लेनेशन बिहाइंड दोस टू टाइप्स एंड डिफरेंशिएट बिटवीन देम. दोनों टाइप्स के सेटलमेंट्स में से न्यूक्लिएटेड एंड डिस्पर्स सेटलमेंट्स में फ़र्क क्या है. व्हाट्स द डिफरेंसेस, व्हाट आर द सिमिलैरिटीज बिटवीन देम. वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट दैट टुडे. ऑलराइट, so these are the three different things that we are learning today. What are human settlements? ठीक है, human settlements क्या होता है उसके बारे में हम पहले जानेंगे. Then the first type of human settlements, that's a nucleated settlement, and then the second type of settlement known as dispersed settlement. ठीक है, so these are the three things we are learning today. Students, keep a pen and notebook ready. You have to take down all the notes on the screen. These notes are taken from the textbook, so it will help you save time. You can just write the notes in your notebook, and every time you're studying for an exam, you can just look back at your notes. Okay, students, difficult words will also be marked in yellow. I will be explaining the meaning of the words in the video. So जैसे ही मैं मीनिंग एक्सप्लेन कर रहा हूँ उसी समय पे उस येलो कलर के वर्ड को अपने नोटबुक में लिखो और उसका मीनिंग भी उसके साइड में लिख देना. राइट, सो लेट्स मूव ऑन टू अ फर्स्ट टॉपिक, ह्यूमन सेटलमेंट्स. नाउ व्हाट आर ह्यूमन सेटलमेंट्स? Any area or location where a group of people live is known as a settlement. Any area or location जहाँ पे एक group of लोग रहते हैं उसे settlement कहा जाता है. Alright? People settle in a place based on a variety of factors such as climate, geography, vegetation, water bodies, etc. People, लोग जो होते हैं वो एक जगह पे settle क्यों करते हैं? कैसे करते हैं? Based on a variety of factors. सच एज क्लाइमेट, वहाँ का क्लाइमेट कैसा है उस हिसाब से मैं वहाँ पे रहूँगा. जोग्राफी, वहाँ का लैंड कैसा है, मतलब चपटी ज़मीन है या उधर बहुत सारे हिल्स है, माउंटेन्स है, उधर पानी के उधर रिवर्स है, लेक्स है. ऑलराइट, वाटर बॉडीज़, वाटरफॉल्स है. ऑलराइट, उस हिसाब से लोग सेटल करते हैं. नाउ देयर इज अ सिंपल एक्सप्लेनेशन फॉर दिस. व्हाई डू ह्यूमंस सेटल? ह्यूमंस एक जगह पे क्यों आ जाते हैं सेटल करने? Simply because back in ancient times, when a Stone Age man you could call them, when Stone Age man used to live, they used to live in caves. They didn't have a means of shelter. All right, they didn't have houses, buildings उस समय पे नहीं होते थे. All right, तो वो क्या करते थे, एक जगह पे रहते थे, फिर दूसरे जगह पे शिफ्ट हो जाते थे, फिर दूसरे जगह पे शिफ्ट हो जाते थे, फिर दूसरी जगह पे शिफ्ट हो जाते थे. जैसे ही पीछे वाले जगहों का खाना ख़त्म होता था, खाना या वहाँ पे सेफ नहीं रहता था, वहाँ का क्लाइमेट बदल जाता था, तो वो शिफ्ट होते रहते. बट दैट्स नॉट अ वेरी ईजी लाइफ स्टाइल, राइट. सोचो वेदर बदल गया और तुमसे वेदर झेला नहीं जा रहा है बिकॉज यू डोंट हैव वॉल्स, यू डोंट हैव अ रूफ, सो यू कीप शिफ्टिंग. तो अभी दैट्स नॉट अ ईजी टास्क टू डू, शिफ्टिंग ऑल द टाइम. So humans decided we will build houses for ourselves, we will build shelter for ourselves and settle in one place. Settling बोलते हैं ना, settle हो जाना. All right. So after that humans, once they started building shelters, they started settling in different places, and that is exactly what a human settlement is. किसी भी area में when a group of people settle down and live in that area for whatever reason, वहाँ का climate अच्छा लगा, वहाँ के water bodies बहुत ज़्यादा है, वहाँ का जोग्राफी अच्छा है. ऑलराइट, उस हिसाब से वो वहाँ पे रह जाते थे, एंड दैट इज़ व्हाट अ ह्यूमन सेटलमेंट इज़. राइट, ऑन द राइट हैंड साइड यू कैन सी अ पिक्चर ऑफ द असल्फा कम्युनिटी. ऑलराइट, असल्फा का कम्युनिटी की जो जितने सारे घर है जो पहाड़ पे है, ऑल ऑफ दिस इज अ सेटलमेंट. दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ अ सेटलमेंट. मुंबई भी एक सेटलमेंट है. ऑलराइट, नाउ let's come to the first type of settlement, that is nucleated settlements. A nucleated settlement is a village, town or city where the people live very close to each other. अभी पहले ये nucleated जो word है येलो में, अब हम इसके मीनिंग को थोड़ा डिस्कस करेंगे. nucleated, what's the meaning of this? I'm using my English वाला strategy, self monitoring. nucleated, मैंने ये वर्ड कहाँ पहले सुना है, साइंस में न्यूक्लियस नाम का वर्ड होता है. न्यूक्लियस कहाँ पे होता है? सेंटर ऑफ द एटम पे होता है. ऑलराइट, सो न्यूक्लिएटेड का मतलब है सेंट्रल, यानी समथिंग दैट इज मूविंग टूवर्ड्स द सेंटर. ऑलराइट,
सो अ न्यूक्लिएटेड सेटलमेंट क्या होता है? बेसिकली एक सेंट्रल लोकेशन है, एक बहुत ही लेट्स से हाउ वुड यू कॉल इट, कंडेंस्ड लोकेशन है. ऑलराइट. सो what are nucleated settlements? They are a village, town, or city where people live very close to each other, just like a nucleus in an atom. The electrons, protons, neutrons, they are all very close to each other. The neutrons and protons in the nucleus of an atom are very close to each other. Similarly, nucleated settlement mein all the houses are very very close to each other. It's like a small bunch of, it's just like a small collection, right? This type of settlement is usually found near water bodies and places with flat agricultural land like plains and plateaus. All right. तो ये इस टाइप का सेटलमेंट कहाँ पे ज़्यादातर देखने मिलता है? इन प्लेसेस विथ फ्लैट लैंड, जहाँ पे ज़मीन इवन है, ऑलराइट, ज़मीन लेवल पे है, ऑलराइट, इन जगहों पे ज़्यादा देखने को मिलेगी. एंड उन जगहों पे और कौन से जगह में देखने मिलेगी? वेयर देयर इज अ लॉट ऑफ वाटर बॉडीज, ऑलराइट, जहाँ पे पानी के ज़्यादा बॉडीज है, जैसे कि लेक्स, रिवर्स, ओशंस, वहाँ पे ज़्यादा तुम्हें मिलेंगे सेटलमेंट्स न्यूक्लिएटेड. एंड कौन से टाइप्स ऑफ लैंड यहाँ पे दिए गए? फॉर एग्जांपल प्लेन्स एंड प्लेटोज. प्लेन्स यानी प्लेन पीस ऑफ लैंड, एंड अ प्लेटो इज अ हिल विद अ फ्लैट टॉप. एक बहुत फ्लैट टॉप का हिल इज अ प्लेटो. Okay, so this type of settlement is usually found there, and the climate in places with nucleated settlements is usually not too extreme. न्यूक्लिएटेड सेटलमेंट्स ज़्यादातर कहाँ पे बनते हैं? जहाँ पे क्लाइमेट एक्सट्रीम नहीं है, वेदर क्लाइमेट इज़ वेरी बैलेंस्ड, मतलब ज़्यादा भी गर्म नहीं है, ज़्यादा भी ठंडा नहीं है, ज़्यादा बारिश भी नहीं होती, वैसे वाले जगह पे न्यूक्लिएटेड सेटलमेंट्स मिल सकते हैं तुम्हें. ऑलराइट. ऑन द राइट हैंड साइड यू कैन सी अ पिक्चर ऑफ अ न्यूक्लिएटेड सेटलमेंट. सैटेलाइट पिक्चर है, तो ये आकाश के ऊपर से लिया गया है. ऑलराइट, यू कैन इट्स टेकन फ्रॉम स्पेस. ओके, एंड यू कैन सी द एंटायर इमेज कंसिस्ट ऑफ प्लेन लैंड, यानी चपटी ज़मीन है जहाँ पे लोग अपना अपना खेती करते हैं, लेकिन एक जगह पे वहाँ पे देयर इज अ बंच ऑफ हाउसेज और अ कलेक्शन ऑफ हाउसेज इन द सेंटर. ऑलराइट. रिमेंबर न्यूक्लिएटेड हमने डिस्कस किया था, मीनिंग ऑफ द वर्ड न्यूक्लिएटेड है सेंट्रल लोकेशन. तो न्यूक्लिएटेड सेटलमेंट यानी एक सेंट्रल सेटलमेंट इज अ प्लेस वेयर all the houses are very close to each other. I will move on to the next topic now, which is dispersed settlements. Okay, this is the second type of settlement. Now, a dispersed settlement is a town, city, or village where people live very far away from each other. Now, न्यूक्लिएटेड यानी बहुत पास पास थे. सो डिस्पर्स्ड का क्या मतलब? उसका ऑपोजिट होता है, यानी दे आर वेरी फार फार अवे. डिस्पर्स्ड यानी वेरी फार फार अवे. ओके, सो यानी और यू कुड कॉल इट स्कैटर्ड. मीनिंग में तुम स्कैटर्ड भी लिख सकते हो. तो डिस्पर्स्ड अभी येलो में, तो उसका मीनिंग अपने नोटबुक्स में लिखो स्टूडेंट्स. डिस्पर्स्ड का मतलब है स्कैटर्ड और स्प्रेड आउट. ओके, सो अ डिस्पर्स्ड सेटलमेंट इज अ टाउन, विलेज और सिटी वेयर पीपल लिव वेरी फार अवे फ्रॉम ईच अदर. वो बहुत दूर दूर रहते हैं इस टाइप ऑफ सेटलमेंट में. दिस टाइप ऑफ सेटलमेंट इज यूजली फाउंड इन प्लेसेज विद अनइवन जोग्राफिक कंडीशंस लाइक हाई माउंटेन, हिल्स एंड डेजर्ट रीजन. ये टाइप ऑफ सेटलमेंट, ये जो डिस्पर्स्ड है, जहाँ पे लोग ज़्यादा दूर रहते हैं एक दूसरे से, ये कहाँ पे मिलता है? अनइवन जोग्राफिक कंडीशन. वहाँ का कंडीशन पहले जैसा फ्लैट नहीं है, एक लेवल पे ज़मीन नहीं है. ज़मीन वहाँ की थोड़े अलग अलग लेवल्स पे होती है. फॉर एग्जांपल हाई माउंटेन्स पे ज़मीन लेवल नहीं होती, तो वहाँ पे तुम्हें डिस्पर्स्ड सेटलमेंट मिल सकता है. हिल्स इज़ द सेम थिंग. हाइट उनकी बहुत ज़्यादा होती है, ज़मीन बहुत अनइवन होती है. सो हिल्स. एंड डेजर्ट्स में भी इट्स टू हॉट. कभी कभी सैंड का एक बड़ा सा माउंटेन तुम्हें दिख जाएगा, कभी कभी एक वैली जैसा हो जाएगा. ऑलराइट. सो अनइवन जोग्राफिक कंडीशन में ये डिस्पर्स्ड सेटलमेंट्स ज़्यादा नज़र आएंगे. ऑलराइट. एंड द क्लाइमेट इन प्लेसेस विद डिस्पर्स्ड सेटलमेंट्स इज यूजुअली एक्सट्रीम. वहाँ का क्लाइमेट कैसा होता है जहाँ पे डिस्पर्स्ड सेटलमेंट्स होते हैं? ज़्यादातर एक्सट्रीम क्लाइमेट होता है, यानी बहुत ही हार्श होता है. ज़्यादा ही गर्म हो सकता है, ज़्यादा ही ठंडा भी हो सकता है. फॉर एग्जाम्पल, इफ़ यू गो टू अ माउंटेन, ऑन टॉप ऑफ अ माउंटेन, यू विल फील वेरी वेरी कोल्ड. ऑलराइट. सो ऑब्वियसली अगर ज़्यादा ठंड है तो लेस पीपल विल सेटल देयर, और कम लोग सेटल होंगे, मतलब वो दूर दूर रहेंगे एक दूसरे से, एक जगह पे नहीं रहेंगे. राइट. सो दैट्स वाई डिस्पर्स्ड सेटलमेंट्स जहाँ पे भी है, वहाँ पे क्लाइमेट यूजुअली एक्सट्रीम होता है. क्यों? क्योंकि अगर क्लाइमेट एक्सट्रीम है तो ऑब्वियसली वहाँ पे लोग एक दूसरे से ज़्यादा पास में नहीं रहेंगे. दे विल ट्राई टू फिगर आउट अ प्लेस फॉर देमसेल्व्स एंड लिव फार फार अवे. राइट. सो यू कैन सी इन द फर्स्ट पिक्चर, इट्स अ डेजर्ट सेटलमेंट.
पहले पिक्चर के हिसाब से यहाँ पे द हाउसेज आर वेरी वेरी क्लोज, नॉट सो क्लोज टू ईच अदर, ऑलराइट। और फिर टू कैन सी इन द एज ऑफ दैट पिक्चर, वहाँ पे एक दूसरा वाइट कलर का ये दिख रहा है, मतलब एक दूसरे घर उतने दूर है, ऑलराइट। Similarly, in the second picture, in the bottom picture, you can see how far away all these houses are from each other, because the geography of that place is uneven. वो एक फ्लैट ज़मीन पे नहीं है, तो क्या है, घर एक दूसरे से दूर है, right? So that is dispersed settlements. With that, students, we have reached the end of our lecture. We have completed our objective. We did three things. We did what is human settlement. Human settlement exactly होता क्या है. We did two types of human settlements: nucleated and dispersed. So now I want you to answer these questions in your notebook. First one is correct the incorrect statement. Nucleated settlements are found in places with extreme climate. तो अगर ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट है तुम्हें इसे करेक्ट करना है, ऑलराइट। एंड डिफरेंशिएट बिटवीन न्यूक्लिएटेड एंड डिस्पर्स सेटलमेंट्स। तो न्यूक्लिएटेड सेटलमेंट्स और डिस्पर्स सेटलमेंट्स, ये दोनों टाइप्स हमने अभी डिस्कस किए। आई वॉन्ट यू टू यूज़ योर नोट्स एंड ड्रॉ अ स्मॉल टेबल। याद है हमने 9th में किया था, डिफरेंशिएट बिटवीन के स्ट्रक्चर को कैसे करते हैं, टेबल ड्रॉ करना है। एक साइड पे पहला टॉपिक आएगा, दूसरे साइड पे दूसरा टॉपिक आएगा, और फिर उन दोनों के बीच में जो भी सिमिलर पॉइंट्स है, लेकिन जो ये पॉइंट्स उनके डिफरेंसेस एक्सप्लेन करते हैं, उसको तुम्हें लिखना है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे न्यूक्लिएटेड सेटलमेंट्स कहाँ पे मिलता है, वो तुम्हारा फर्स्ट पॉइंट होगा। दूसरा पॉइंट होगा कि न्यूक्लिएटेड सेटलमेंट्स की जगह का वेदर कैसे हो सकता है, वो भी लिख सकते हो तुम। न्यूक्लिएटेड सेटलमेंट्स का डेफिनेशन क्या है, वो भी लिख सकते हो तुम, ऑलराइट। उसी तरह दूसरे साइड पे डिस्पर्स सेटलमेंट्स के पॉइंट्स आएंगे, लेकिन जो भी पॉइंट तुम लिख रहे हो वो सेम टू सेम होने चाहिए। एक साइड पे क्लाइमेट के बारे में लिख रहे हो तो दूसरे साइड पे डेफिनेशन मत लिखो, फिर दूसरे साइड पे भी क्लाइमेट के बारे में ही लिखो। अगर तुमने न्यूक्लिएटेड सेटलमेंट्स का डेफिनेशन लिखा पहले पॉइंट में, तो डिस्पर्स सेटलमेंट्स के पहला पॉइंट डेफिनेशन ही होना चाहिए, ऑलराइट। सो these are the two questions that you'll have to answer for today, students, and with that we have reached the end of our lecture. Thank you so much for learning. If you have any doubts, any questions, reach out to me on WhatsApp or reach out to your group leaders also. Now you have your group leaders who will your student buddies who can help you with your doubts. पहले उनसे पूछो, फिर भी समझ में नहीं आया, then you can reach out to me on WhatsApp or call me. Thank you so much and have a nice day all of you.